All right. Hi, everyone. Good evening. Hi, Rugved. Good evening, Tanmay. Good evening, Pratyasha. Hi, Rudra. Pratyasha, तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है? I find the name very intriguing. Yeah. Hi, Rudra. Hi, Siddhi. Hi, Kushal. Pratyasha means hope. Wow. Hope or promise. सही है. कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में है क्या? वैसे तो हिंदी वर्ड ही लग रहा है ये प्रत्याशा. हाँ. So क्या कह रहे हो आयुष? You got the answer to the question that I gave in the last class. कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? Last class was अच्छा ये वाला. देखो. हेलो सर. हाँ बोलो पृथ्वीराज. सर वही सर जो डॉक्टर ने सर ग्रुप पे पूछा था सर, मुझे अब तक समझ नहीं आया सर वो एन कहाँ से है. नंबर ऑफ मोल्स के लिए पापा. अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना. सी इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यस सर. 1 मोल गैस है और 2 मोल गैस है तो इसकी इंटरनल एनर्जी यू होगी, इसकी 2u होगी. अच्छा ओह दैट ओके सर. ठीक है. अच्छा अच्छा. दैट आई हैड आस्क्ड फॉर द वर्क. कौन सा ग्रेटर रहेगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का? हाँ हाँ हाँ. अच्छा है. गुड. यू फिगर्ड आउट. कैसे फिगर आउट करा? इन दोनों में से कौन सा बड़ा रहेगा, कौन सा छोटा रहेगा?
उसमें मैनेज क्या करना है पार्थ, हो जाता है जब फुल टाइम काम ही होता है तो सब मैनेज हो जाता है. अच्छा, एनीवेज चलो, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फॉर द डे. You guys start with this problem. I have this question for you, and with this question, I will be sharing the problem solving methodology that we will be typically using in thermodynamics and thermochemistry. And the starting steps are something which might seem obvious to you, but they will become more and more crucial when we are going to um, discuss different systems. Like अभी यहाँ पर ideal gas का discussion है, उसके बाद में we'll be talking about solids and liquids and various other systems as well, phase transformations, chemical reactions. क्यों मेरी आवाज कुछ अलग हुई है क्या? Is it different? Wait, let me drink some water. मतलब मुझे कोल्ड तो नहीं हुआ है. Although मैं थोड़ी कोल्ड जगह पर जरूर हूँ, तो that way yes, that might have an impact. मैं अभी दिल्ली में हूँ. अभी मैं थोड़े टाइम पहले उदयपुर में था, उसके पहले जैसलमेर में था, उसके पहले मेरे होम टाउन में था. नहीं नहीं, आई हैव माय इन लॉज इन दिल्ली. हाँ, अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर थोड़ा इधर थोड़ा उधर. नहीं नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से नहीं हूँ हर्ष. आई नो मेरी लाइक ऐसे चपटी नाक को देखकर तुम ऐसा गेस करने की कोशिश कर रहे होगे, बट वैसा नहीं है. आई एम फ्रॉम राजस्थान. हाँ राइट केतन. कोटा, कोटा राजस्थान बताया था मैंने तुम लोगों को पहले? नहीं? अच्छा, तुम लोग बाद में ज्वाइन किए हो ना कुछ लोग तो. करेक्ट करेक्ट. थैंक्स कुशल. हाँ हाँ, मैंने बताया तो था, मैंने मेरा लाइक 11th एंड 12th क्लास का जो प्रेपरेशन था वो इधर कोटा में बंसल क्लासेस से किया था, बट दैट वाज लॉन्ग बैक. कोटा इज मच मोर रिगरस देन पेस भाई. तुम लोग तो अभी लाइक यू गाइस आर पैम्पर्ड. इफ यू go to Kota, you will realize that वहाँ पर हाँ, the competition is quite intense. The kind of atmosphere that is, it's a different ball game altogether. इनफैक्ट जैसे यहाँ बॉम्बे में तो कैसा है ना, द सर्विस कल्चर इज अ लॉट. लाइक सर्विस इन द सेंस दैट फॉर एग्जांपल the in terms of the day to day workings, like for example, let's say I am teaching you, so I will dictate you, then I will give you time to copy things on the board. Like just say when it was in an offline manner, there would be doubt sessions, there will be interactions over WhatsApp and all things. Like
वहां पर ऐसा नहीं होता है. वहां पर when it used to be offline classes in Kota, in one class 150 to 160 students generally are present, and like big halls. They don't spoon feed there much. Like they in fact are insistent on this fact that like they grind you, and then with that grind only you get to learn. When I was teaching offline, I used to use mic. Like starting में I didn't used to, but then once I started using mic, I was like कि यार ये तो बहुत ही comfortable है. It saves a lot of energy. And there was this one trick that I used to do when the class used to make a lot of noise, is that I used to put the mic close to the speaker, and then it will make a very shrilling noise which will just like dominate every other disturbance that is there, and then I used to get silence. So especially it used to work when I used to handle some notorious batch or something. नहीं वो हाथ से नहीं होता था पार्श्व. वो आई हैड टू यूज द माइक इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर. नहीं दिस ईयर कोटा इज लाइक empty, in the sense like very few students are there. I would say 5-10% students only are there. Those who do not have the conducive environment in their hometowns, they have stayed back, although they are also learning online only. Like there are no classes that are happening, they are also learning in an online manner, but it's just that in their hometowns they don't have this setup of a separate room or something which gives them a comfort of you know good internet connection. So I think 10%, 20%, maybe not 20%, 20% would be a high number, but yeah. हाँ मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स रहेंगे रिकॉर्डेड. मतलब इनफैक्ट I had shared with you guys, जैसे periodic का I had shared with you because it was a very theory oriented lectures. I have thermo का भी recorded lectures also. I could have shared them also with you, but it kind of works for only those students who are sincere and they work dedicatedly on that. हाँ चलो चलो ठीक है. अभी तुम लोग ये क्वेश्चन तो सॉल्व करो. लाइक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? एक अकेली पूर्णा ही कर रही होगी. कहाँ है पूर्णा? आई है आज. पूर्णा ने आंसर निकाल लिया है. फेस रिवील करा तो था अपन ने उस दिन जब मैं तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा रहा था. अभी तो मैंने लाइक आई एम कवर्ड इन ऑल विंटर वेयर. मेरी जेई रैंक मैंने बताया था ना 967. हाँ हो सकता है. थोड़ा डिफरेंट सेटअप तो है. देखो आई एम इन अ डिफरेंट रूम एज कंपेयर टू द रेगुलर रूम. हम्म. कैसे नहीं याद रहेगा यार. मतलब ये सब चीजें याद रहती हैं पार्थ. दीज आर सम थिंग्स व्हिच यू डोंट फॉरगेट. नहीं आई एम यूजिंग द इनबिल्ट माइक ऑफ द लैपटॉप. दैट इज less sensitive, so it cancels out much of the ambient noise. External microphones are very sensitive.
बीच में इनफैक्ट आई हैड थॉट ऑफ बाइंग दोज gamer headsets which have those unidirectional mics, but then that headset is a big burden. Hmm. ऑल राइट, लक्ष्मी ने आंसर निकाला है। क्या बात है लक्ष्मी, तुम मतलब क्या हो गया है तुम्हें, तुम आंसर निकाल रही हो? माय गॉड, किसी ने डांट वाट दिया क्या तुमको? अच्छा। अच्छा, आप लोगों ने अभी अपने एमटी की तैयारी शुरू करी है कि नहीं करी है? हम्म, 1 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए मेजर टेस्ट का तैयारी। Like I'm sure you guys would have watched one of the videos that I had shared on my YouTube channel. मतलब it was one of the orientation session that we had for the previous batch. But वो ऐसे वो मैंने उसको वो बना दिया, क्या बोलते हैं, like when you go on to a channel then it comes as the first video ना, premiere video or something of that sort. हाँ हाँ हाँ, correct correct, I think sometime in April only it might have happened. So that video is something which like gives you an idea of how you will have to understand your preparation at a chapter level, right? जैसे for example अभी you will have to keep your preparation at a chapter level in the sense that अभी physics plus chemistry plus maths मिला के आपके कितने टेस्ट एज इन कितने चैप्टर्स हो गए एमटी के लिए? आई एम अज्यूमिंग सम 25-30 चैप्टर्स तो हो ही गए होंगे। हाँ, सो अराउंड 25 to 30 चैप्टर्स अगर हैं तो first you need to get a grip on your chapter level understanding, that how confident you are in those respective chapters. And then अभी जैसे आपके 4 वीक बचे हुए हैं, राइट? सो 4 वीक में से आई वुड से इन द स्टार्टिंग पार्ट you focus on those chapters which require more preparation. The weaker chapters are to be handled abhi se, don't need to wait for them for later on. ठीक है, और वीकर चैप्टर्स में लाइक इन चैप्टर्स को ऐसे वो 3 लेवल में डिवाइड कर लेना, L1 L2 L3, लाइक व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। लाइक L1 विल बी समथिंग लाइक कि भाई मतलब मैंने नोट्स ही ढंग से नहीं बनाया, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई मिस्ड ऑन द चैप्टर, मेरे नोट्स गड़बड़ है। ठीक है, L2 वुड बी समथिंग कि हाँ नोट्स प्रॉपर है, एंड द थिंग इज दैट आई वुड हैव से पार्शियली अटेम्प्टेड द बुकलेट, पूरा अच्छे से नहीं करा। ठीक है, जो डीपीपीज असाइनमेंट्स वो सब दिए थे वो सब अच्छे से नहीं हो पाए। एंड L3 वुड बी समथिंग विच, लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड द बुकलेट, you have completed the DPPs which I had shared with you, you gave tests also, right? So break them down into L1 L2 L3 and start your preparation with the L1 chapters first. अभी उन पर फोकस करो, and try and to at least make sure that booklet आपका इन वीकर चैप्टर्स का, बुकलेट में भी स्पेशली जो इजियर सेक्शंस हैं वो जरूर पूरे हो रहे हैं। ठीक है, बुकलेट एंड डीपीपीज जो आपको भेजी जाती है। ठीक है, देन जो लास्ट, एंड इस प्रोग्रेसिव मैनर में अपना प्रिपरेशन रखना,
एंड देन लास्ट में, ठीक है, इन द फाइनल वीक, डोंट फॉरगेट टू गिव टेस्ट्स, ठीक है, गिव आई वुड से मॉक टेस्ट। मेंस का एक 3 आवर्स का टेस्ट देना, ठीक है, सब सब्जेक्ट्स का मिला के। एडवांस का एक 3 आवर्स का टेस्ट देना, सब सब्जेक्ट्स का मिलाकर, ठीक है। एंड स्पेशली फोकस ऑन दिस वन और मोर देन वन, इनकी खास प्रैक्टिस करना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल बी द पेन एरिया फॉर एवरीवन, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू नो brings a lot of difference in your marks, ठीक है। So this is something which I had shared in that video as well. So it's a not long video, it's I think a 15-20 minutes video only. एक बार चाहिए तो आप उसको देखो, उससे काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी, that will help you in organizing your preparations. क्योंकि जेई की प्रिपरेशन में अब जैसे आप समझ रहे हो ना, वर्कलोड अक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो अभी और आगे अक्यूमुलेट होता जाएगा। एंड इन दैट केस रिविजन्स आर द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर्स। क्योंकि देखो, इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से, दिस आई हैव बीन सेइंग लॉन्ग बैक, एंड आई कंप्लीटली बिलीव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैच्योरिटी आती है विद टाइम, and as a result students are able to organize their efforts better. So this is something which JEE ka examination differentiates based on academics, that it differentiates between just intelligent versus intelligent as well as organized hardworking students. तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो कि हाँ हाँ मतलब आई हैड लाइक अ ग्रेट रिजल्ट इन 10th examinations and like I did well in some of the TWTs, तो reality check मिल जाएगा आपको when you will be giving your major test. So please make sure that you don't lose up on that part. You will really need to organize your workload better, ताकि आपके revisions like अच्छे से हो पाए। like आप ऐसे imagine करो ना, like फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 11th एंड 12th के मिला के अराउंड 100 चैप्टर्स हो जाएंगे by the end of your syllabus. Now, until and unless those 100 chapters are well organized in terms of their revisions, you won't have that command, you don't have that confidence before the exams, right? So make sure that revisions are very well structured. Revisions primarily, as I said, that 20% will be your short notes and formula sheets. 80% would be those good questions that you would have come across in your regular practice. Those good questions, they become your you know I would say they consist of the variety of questions that are asked in the chapter. They consist of the kind of common careless mistakes which occur, which you should avoid. So if you have, say, a bank of 50 to 70 questions for each chapter, and that is a bank of the shortlisted questions, that becomes a great source of revision for you. You are able to recap the formulas and the problem solving methodology that was there in that chapter. नहीं आप देखो, सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइज करना, टेस्ट का एनालिसिस करना, ये सारे स्किल सेट है ना, ओवरनाइट डेवलप नहीं होंगे हर्ष. लाइक यू विल हैव टू डू देम टाइम एंड अगेन so as to become better at it. For example, if I start asking you to make formula sheet, like that is one very simple revision technique. However, on the first attempt, like you wouldn't be able to summarize things well, but maybe in the second or the third attempt you would be able to make a better formula sheet, something which really condenses things and
helps you focus on the important aspects. तो उसी तरीके से ये जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस भी होता है, इट इज़ एन इवॉल्विंग एक्सरसाइज. लाइक आपने आज 50-70 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लिए, तो वो सेकेंड बार जब आप रिवीजन करोगे या थर्ड बार जब रिवीजन करोगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी एलिमिनेटिंग सर्टन क्वेश्चंस कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, इनको क्या बार बार देखूंगा, लेट देम गो. So the revision material becomes more and more condensed, right? Sometimes you add some questions also, some good questions that you would have come across here and there. ठीक है. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है प्रत्याशा, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का ही रहता है, दैट हाउ टू कोप अप विद बैकलॉग्स. एंड दैट इज वेयर आई यू नो help students remember this fact that you can't leave chapters. मतलब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, दैट हम जब भी पेपर सेट करते हैं, राइट, बीट मेंस का पेपर, बीट एडवांस का पेपर, लाइक एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पूरे पेपर में. Like there will be some 20 to 30% questions will be easy. There will be some 30 to 40% questions which will be medium level, right? There will be some 20-30% questions which will be hard, right? एक general एक distribution रहता है on how the paper is set. So the thing is that if you leave a chapter and उस chapter का easy question exam में आ गया, तो वो आपके लिए एक lost opportunity हो जाएगा. बिकॉज आपने सोचा कि वो चैप्टर मेरा बैकलॉग रह गया है, चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट था, लाइक इसलिए मैंने छोड़ दिया. ठीक है. एंड स्पेशली आज की तारीख में व्हेन यू हैव नो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस, राइट, सो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में, राइट, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन एक चैप्टर में आ ही जाता है. ठीक है. तो अगर कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है या कोई चैप्टर बैकलॉग रह गया है, राइट, तो आई वुडेंट से कि आप एकदम उसको 100% करने की पूरी कोशिश करो. कि फॉर एग्जांपल सर मेरा अभी मतलब लेट्स से आई जॉइंड इन लेट और मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर वीक है और मैं लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टक हूँ, तो व्हाट शुड आई डू? सो व्हाट आई विल रेकमेंड इज दैट यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू इंश्योर दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको इजी लेवल क्वेश्चंस में कंफर्ट आ रहा है, इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस में कंफर्ट आ रहा है. ठीक है. एंड इनफैक्ट इन इजी मीडियम क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए हैव आई शेयर्ड विद यू गाइस अ क्वेश्चन बैंक. देयर वाज दिस क्वेश्चन बैंक दैट आई जनरली शेयर विद स्टूडेंट्स, which is a collection of easy and medium questions in chapters. अच्छा, मैं भेज देता हूँ. This is especially for those students which will be कि भाई मेरा वीक था चैप्टर. तो अगर आपको वैसा, एक मिनट, लेट मी फाइंड आउट कहाँ गया. हाँ, कोई चैप्टर वीक रह गया है, तो वीक चैप्टर कैसे मैं इंश्योर करूं कि हाँ मतलब मुझे बेसिक्स तो कवर हो ही रहा है. हाँ ठीक है, लेट मी शेयर दिस. मैं भी ग्रुप पे डाल देता हूँ ना, भूल जाता हूँ. ठीक है. बट दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर स्टूडेंट्स who found those chapters weak. Otherwise the questions are pretty simple. Like if you are good at that chapter, then you will find it a like piece of cake. ठीक है. हाँ, नहीं, टफ क्वेश्चंस का बैंक आएगा यश, धीरे धीरे आएगा. ठीक है. टफ क्वेश्चंस का बैंक वैसे राइट नाउ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लेट्स से बुकलेट और डीपीपीज एंड ऑल सब कर लेते हो, तो उसके बाद आई होप आप एन अवस्थी के जो डिफिकल्ट वाले सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर रहे हो. हाँ हाँ, जिप फाइल है वो जो भेजा मैंने.
टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? During the exam, time management, yes, it is a challenge for students, and इसमें again practice ही करनी पड़ती है, that while giving the tests you need to avoid getting stuck in questions. And ये जो problem है ये especially मतलब उस केस में आ जाता है जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको लगता है कि हाँ हाँ ये तो आता है मुझे, एंड देन यू ओवर स्पेंड टाइम ऑन इट. तो ये चीज यश आप द मोर प्रैक्टिस टेस्ट यू गिव, नो, इट हेल्प्स यू रिफाइन योर strategy, in the sense that there is this very important skill set, especially when giving the online examinations, that you need to develop, that by looking at the question within the first 10 seconds you have to make a call whether I would want to attempt it or leave it. That is an important skill set. If you master that skill set, then you will be able to maximize your score. How you will be able to maximize your score? Because then you will be able to attempt the easy and the medium level questions first, and put the difficult questions for the later part. जैसे for example chemistry में आपको 1 घंटे का time मिल रहा है for attempting the paper. So you don't go in a linear manner. You read the question. Within the 10 seconds of that reading up of the question, you decide कि okay, I will attempt this question, it seems like something doable, something similar I have done before, all I need to just figure out is the calculation bit and all of that. तो आप वो question करोगे. अगर आपने question पढ़ा एंड उसमें लग रहा है कि हाँ यार इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लाइक हो सकता है कि इसमें कुछ ट्रिक्स हो जो कि मुझे फिगर आउट करनी पड़ेगी, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस क्वेश्चन को बाद के लिए रखो कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल कम एट इट. तो ऐसे में क्या होगा, दैट इन द 1 hour एलोकेटेड टू यू, आप 40 minutes के अराउंड टाइम में एक आइट्रेशन कंप्लीट कर लोगे जिसमें इजी मीडियम क्वेश्चंस यू वुड हैव आंसर्ड. And then that remaining 20 minutes of your time you can take up on that on those challenging questions, because वो सबके लिए चैलेंजिंग होंगे. तो उसमें अगर आप स्कोर कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर जाते हो तो एटलीस्ट आपने अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लिया है. ऐसा नहीं हुआ दैट बाय द एंड ऑफ द टेस्ट यू रियलाइज कि अरे ये एंड में इजी क्वेश्चंस तो मेरे छूट ही गए. हाँ, पीडीएफ नहीं खुल रहा है क्या? नहीं, वो एक्चुअली खुल जाता है रुद्र. आई थिंक समटाइम्स इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द जिप फाइल ओपनर दैट यू हैव समथिंग. ये खुल जाएगा, मतलब दे शुड ओपन. किसी का खुल रहा है जिप फाइल के अंदर का पीडीएफ? हाँ हाँ, कई स्टूडेंट्स का हो रहा है, तो जिनका नहीं हो रहा है वो कुछ जिप फाइल का ही वो रहता है, लाइक द ओपनर दैट यू हैव एज सच. हाँ, लैपटॉप में ट्राई कर लेना एक बार. मेल मेल कर लो खुद को फाइल और फिर एक बार देखो, ड्राइव में डाल के करो. जुगाड़ लगाओ यार, तुम लोगों को मुझसे ज्यादा टेक आता है. हाँ हाँ हाँ. अच्छा चलो ठीक है, अपन लोग करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि, वैसे तो आई वुड से दैट वी आर अहेड इन टर्म्स ऑफ द टाइमलाइंस फॉर द एमटी, बट ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो अच्छा है. हाँ हाँ, ये जिप फाइल आई विल रीआइटरेट इज अगेन समथिंग दैट आई हैव सेंट स्पेशली for practice if you are weak in a particular chapter. If you are good in it, you don't need to go through it. ठीक है. ऑल राइट, चलो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. और
question on an isothermal expansion of an ideal gas. हाँ हाँ, अगर आपका चैप्टर क्लियर है अमन एंड आपको स्टिल डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, देन एज आई सेड यू आर एट लेवल 2, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट जो बुकलेट के अच्छे क्वेश्चंस थे, जो डीपीपी मैंने आपको भेजी थी उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, लाइक वो एक शॉर्टलिस्ट, एक पर्सनलाइज्ड शॉर्टलिस्ट ऑफ गुड क्वेश्चंस आपका बन रहा है, एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू देन वर्क ऑन. ठीक है. हाँ हाँ, शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए तन्मय. लाइक यू शुड हैव स्पेशली फॉर chapters like atomic, mole, gaseous. They are some of those chapters which require you to have a summary ready in front of you. Like you should know कि ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे इन चैप्टर्स में, एंड उसमें these were the key formulas. नहीं नहीं, पीरियोडिक एंड बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स का कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा. पीरियोडिक, बॉन्डिंग, इन सब में शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं. इसमें you have to really work hard with your notes, and the same will be true for organic, inorganic also. However, organic में ऐसे क्या charts आप बना बना के दीवारों पे चिपका सकते हो. Those kind of also help in remembering a lot of concepts. तो वो एक प्रैक्टिस है जो कि आप करोगे तो it will help you in retaining a lot of information. ठीक है. ऑर्गेनिक में मतलब one of the things which I personally realized that helped me was the fact that I used to always start revising from the beginning. मतलब मुझे खुद को ये प्रॉब्लम आती थी when I study organic chemistry. तो I used to face this problem that यार याद नहीं रह रहा है, मतलब उसमें लाइक सर ने बताया कि मैंने ये पढ़ाया था तब, और उसको यूज कर लिया फिर किसी ऑनगोइंग चैप्टर के अंदर कोई पुराना कॉन्सेप्ट, एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो याद ही नहीं रहा. तो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दैट आई यूज्ड टू रिलीजियसली रिवाइज ऑर्गेनिक फ्रॉम द बिगिनिंग. लेट्स से एक हफ्ता निकल गया, तो एक हफ्ते बाद मैं डिसाइडेड कि हाँ चलो ऑर्गेनिक का रिवीजन कर लेते हैं. तो मैं स्टार्टिंग से उसका एक क्विक रीडिंग लगाना शुरू कर देता था कि हाँ हाँ पहले ये पढ़ाया था सर ने, फिर वो पढ़ाया था. 2-3 घंटे के अंदर लाइक फटाफट रिकैप हो जाता था. एंड व्हेन दैट बिकेम अ हैबिट, then I really found कि I was able to connect the points well. क्योंकि ऑर्गेनिक में होता ही यही है, मतलब आपको आज जो जीओसी पढ़ा रहे हैं वो आगे आने वाले हर चैप्टर में यूज होगी. तो अगर आप उस चीज को याद नहीं रखोगे, मतलब वो आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा, तो व्हाट विल हैपन इन द क्लास है सर बोल देंगे कि ये हमने देखो वैसे देखा था, डू यू रिमेम्बर दैट दीज वर द फैक्टर्स एंड दीज वर द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, एंड इस हिसाब से वी गेट दिस आंसर. बट अगर आपको वो फैक्टर्स ही याद नहीं रहे, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ही याद नहीं रहा, तो फिर यू एंड सर विल बी ऑन अ डिफरेंट पेज. ठीक है. हाँ, वो वैष्णव इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. लाइक यू आर आस्किंग मी हाउ टू मैनेज इन स्कूल एंड कोचिंग एट द सेम टाइम. तो दैट इज समथिंग विच यू हैव साइंड अप फॉर. एंड उसमें लाइक मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है. मैनेजिंग स्कूल एंड कोचिंग टुगेदर इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क. हाँ हाँ, सेल्फ स्टडी का टाइम आपके लिए थोड़ा कम हो जाता है, मतलब एंड स्पेशली उस केस में व्हाट हैपेंस इज अगर आपका बैकलॉग रह गया तो फिर आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी. मतलब दिस इज एवरी ईयर का प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स ऑफ सपोर्ट बैच, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको स्कूल का भी वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है, पेस का भी वर्कलोड मैनेज करता है, और फिर कहीं पर बैकलॉग रह जाते हैं तो फिर उसमें जान निकल जाती है.
नहीं, आपको प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा। देखो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज योर कोचिंग एंड उसका वर्कलोड पहले, एंड मेक श्योर दैट हैपेंस फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट टाइम फॉर योर स्कूल एज वेल। हम्म, ठीक है, चलो अब रुक जाओ। हाँ मतलब तुम लोगों के सवाल ही खत्म नहीं होंगे। फिर करेंगे अपन बाकी टाइम कभी और वापस बात करेंगे। अभी तो मुझे पढ़ाने दो। मतलब आई नो, मतलब आई कैन ऑल्सो लाइक sympathize on that front because you would really miss those interactions, because generally ये होता था, मतलब all these kind of questions are something which used to happen after class। मतलब हम लोग मिलते हैं, एक जगह आते हैं, उसके बाद जब क्लास हो जाती है तो क्लास में पढ़ लिया। अब उसके बाद घर जाने की जल्दी नहीं होती है ना हर बार। तो sometimes you sit back, you interact with teachers, you interact with friends, you interact with the counselors that are there। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके उस टाइम पे आंसर हो जाते हैं, बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि अभी आप लोग घर पे बैठे बैठे क्या आइसोलेटेड मैनर में लाइक सवाल आते हैं, बट वो फिर उस टाइम पे कोई होता नहीं है आसपास तो वो रह जाता है। वो मतलब दिक्कत तो है। लाइव लेक्चर का देखो मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं है कब होगा कैसे होगा, बिकॉज इट बिकम्स समथिंग विच लाइक हो रहा है, पुश तो हो रही है चीज़ें। मतलब इनफैक्ट अभी कोटा में स्पेशली, बिकॉज द एंटायर कोटा का इकोसिस्टम यूज्ड टू डिपेंड ऑन द एजुकेशन इंडस्ट्री एज सच, तो लोग काफ़ी पुश कर रहे हैं स्टार्ट करने का। बट अल्टीमेटली इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ना, इफ दे फील कि हाँ इट्स सेफ, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट इसमें अब धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट होंगी। Right now I don't think the biggest problem is that no coaching class has an infrastructure to run things in both the ways, कि ऑनलाइन भी पढ़ा लो ऑफलाइन भी पढ़ा लो। एंड उसमें होगा ये दैट देयर विल बी ऑलवेज दीज टू साइड्स टू द थिंग, दैट देयर विल बी सम पेरेंट्स हु वुड बी लाइक मोर ऑन द सेफ साइड। मतलब होता है ना, किसी के घर में कुछ ना कुछ आसपास कहीं पे कुछ ट्रेजेडी हुई होगी तो दे विल बी वेरी मच अवर्स टू द फैक्ट कि भाई नहीं, हमको नहीं निकलना बाहर, घर से ही बढ़िया है। एंड देन देयर विल बी वन साइड ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु वुड बी कि नहीं, हमको ऑनलाइन नहीं जम ही नहीं रहा है, क्या करें। तो वो दिक्कत तो होंगी। हाँ वही देखते हैं अभी। आई थिंक राइट पूर्णा, हो सकता है कि दैट फैसिलिटी माइट बी यूज्ड फॉर। एनीवेज चलो ठीक है, 6 बजा दिया तुम लोगों ने, आधे ज़्यादा क्लास का टाइम निकल गया। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, 5 moles of an ideal gas at 300 Kelvin, राइट। तो इसमें हम लोग देखो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले when you come across such questions, think of the system, right? As I said, अभी तो आइडियल गैस के साथ में वर्क कर रहे हैं हम लोग, बाद में सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशंस केमिकल रिएक्शंस ये सब भी आएंगे। तो हर एक में एक अपना अप्रोच रहेगा ऑफ हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर गैसेस के लिए ओके वी फिगर्ड आउट दैट ओके सिस्टम इज द आइडियल गैस। एंड आइडियल गैस में नोटिस कर लो कि वो आइडियल गैस जो दिया हुआ है वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्रायटोमिक है, उसका कुछ यूज आ रहा है क्या। अब इस केस में 5 मोल आइडियल गैस बोल दिया है बट बताया नहीं है कौन सा गैस है, तो मे बी शायद उसका एटोमिसिटी काम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम you move on towards understanding what is the process, right? Is it
आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, लाइक टाइप क्या है उसका एंड नेचर क्या है उसका. नेचर इज मीन रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल, राइट. सो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मेक्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. लाइक रीड ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली. सो आइसोथर्मली बोल के लाइक ये तो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन दे दी है दैट द प्रोसेस का टाइप क्या है. हाउएवर रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, that is something which was not explicitly mentioned in the question, and that sometimes becomes important for you to decipher from the language of the question. Right now isothermal expansion में यहाँ पर constant external pressure दिया हुआ है which gives a hint that this is an irreversible process. Now कहाँ से ये hint हमने catch किया? तो if you remember मैंने आपको इसीलिए visualizations बताए थे that अगर हम रिवर्सिबली जा रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन बाय ग्रेन सैंड रिमूव करते हैं. तो ग्रेन बाय ग्रेन रिमूव करने में क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी चेंज होता है ग्रेन बाय ग्रेन, राइट. एंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, राइट, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल हमने क्या करा था, ये पूरा का पूरा सैंड एक साथ हटा दिया, तो हमारा एक्सपेंशन जो हुआ वो किसके अगेंस्ट हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच वाज कांस्टेंट, राइट. So that gave you a hint that this is isothermal irreversible process. ठीक है. After identifying the system and the process, here comes the next step, which is your analysis. And this is basically organizing the information given in the question neatly. क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, in terms of the parameters of the gas, उनको अच्छे से लिख लो, राइट. सो आपको यहाँ पर मोल्स, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर, मोल्स, ये सब दिया हुआ है. एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट विच द एक्सपेंशन हैपेंस वो भी दिया हुआ है. इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, right? That is not something which is given, but of course you can use ideal gas equation to determine those. ठीक है. Now once you have that analysis in front of you कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, you will get a clarity of the number of variables that you would need to work with. Then comes the fourth step. The fourth step is about formulating equations which can help solve those variables. For example, there will be process equations, the ideal gas equation. So in case of isothermal, it is P initial, V initial is equal to P final, V final. And then there is first law of thermodynamics, which also makes up an equation relating the variables. So यहाँ पर you remember the first law calculations for reversible and irreversible isothermal processes, right? Delta U तो zero था, but work and heat, they were different if the process was reversible versus irreversible. So in this case, because it is an irreversible process, we remember that work was minus P external delta V and Q was minus W. So now अब V की values हम लोग निकाल सकते हैं and substitute them over here to get the answer. However, after doing this also, there is an important step which many students kind of make a mistake in. क्या स्टेप रहेगा, इसके बाद में कोई एक स्टेप बचा है आप लोगों के हिसाब से? बचा है हर्ष? हाँ यश, you are right. The last step would be checking for sign conventions and units. मतलब I have seen like students को ये पूरा like systematic approach समझ में आ जाता है and last step पे आके गलतियां करते हैं, right? जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर change is always final minus initial, तो प्रॉपरली फाइनल रिलेशन को यहाँ पे डाल लेगा. ठीक है. यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखने का, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर आपको 1 atm दिया हुआ है, राइट.
तो उसका फिर यूनिट कन्वर्जन करने का मतलब यहाँ पर आप V फाइनल माइनस V इनिशियल डालोगे तो ये ATM लीटर में आएगा। तो इसको 101.3 से मल्टीप्लाई करना ताकि आंसर आप जूल्स में रिपोर्ट कर पाओ। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं विच यू जनरली टेंड टू मिस आउट ऑन। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे और आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे पीछे से तो आप थोड़े फ्रस्ट्रेट होगे एंड देन यू विल रियलाइज कि दिस वाज समथिंग दैट यू नीडेड टू फोकस ऑन, एक्स्ट्रा फोकस ऑन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इसका आंसर क्या रहेगा वो मैं निकाल के बताऊं आप लोगों को। इसका आंसर लेट मी सी। कौन सा क्वेश्चन था ये? बुकलेट का ही है आई थिंक। FBS सेक्शन में से मैंने उठाया होगा। 15th क्वेश्चन है FBS का। तो करेक्ट, -9353 जूल्स। हाँ, मैं आऊंगा साईराम वापस से स्टेप 3 स्टेप 4 पर आऊंगा मैं, डूइंग द एनालिसिस बिट एंड formulating the equations. I will again come to this while solving other questions. So I will reiterate this problem solving method for you time and again so that आपको ये समझ में आए कि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे जा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे V इनिशियल V फाइनल निकालना है और उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, इसमें आपको R का भी करेक्ट यूनिट्स यूज करना है। लाइक ATM लीटर में है तो R का वैल्यू 0.0821 उस हिसाब से यूज करना। अच्छा, now continuing our discussion of applying the first law on ideal gases. So you remember हम लोगों ने लास्ट क्लास में आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस पर कैलकुलेशंस कर लिए थे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैसेस। नाउ अब किस तरीके से कैलकुलेशंस रहेंगी थोड़ा आप ट्राई करो, बाकी मैं तो बताऊंगा ही सही। So we are going from some P1 V1 T1 to P2 V2 T2 such that there is no heat exchanged, right? Q is equal to 0. And the process equation will be the ideal gas equation only, that T1 V1 T1 is equal to P2 V2 upon T2. Now, अब notice करना, in case of adiabatic processes, there is something different that is going to be as compared to the earlier processes for ideal gases that we had seen. For the earlier processes, आप notice करना that हम लोग किसी initial state से किसी final state पर जा पा रहे थे in a reversible as well as irreversible manner. Right? मुझे आइसोकोरिक तरीके से जाना था किसी इनिशियल से किसी फाइनल स्टेट पर, मैं रिवर्सिबल आइसोकोरिक तरीके से एंड इरिवर्सिबल आइसोकोरिक तरीके से भी जा पा रहा था। मैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल तरीके से, ठीक है, कोई एक इनिशियल स्टेट से कोई एक फाइनल स्टेट जाना था तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एज वेल एज रिवर्सिबल आइसोथर्मल तरीके से भी जा पा रहा था।
However, in case of adiabatic processes, ठीक है, this is something which is for adiabatic processes especially, I'm highlighting that we will be not or we will not be able to go from a given initial state to a given final state via both the ways. We can either go via a reversible way or via an irreversible way. So it comes as a summary statement that between two states, between any or between two states, there can be only one adiabatic pathway. It can be either reversible or irreversible. दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे. And ऐसा क्यों है? Is because of the nature of the process itself. कैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, for reversible adiabatic there is another process equation that holds true which will not be valid for irreversible adiabatic. What is that process equation? That process equation is PV raised to the power of gamma is constant. What is gamma? This gamma is the ratio of Cp and Cv of the ideal gas. Now, कहाँ से आया ये, कैसे आया ये, तो इसका एक क्विक प्रूफ भी हम लोग देखेंगे. Although nobody is going to ask you the proof that derive this relationship for adiabatic reversible processes. However, you should be able to comprehend the proof because it is based on simple maths. ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम शुरू करते हैं. So according to the first law of thermodynamics, notice करना, dq plus dw is equal to du. In case of adiabatic processes, dq तो 0 रहेगा. ठीक है. How do we write dw? What was the fundamental formula for it? Minus p external dv. That was for the work, basic formula. And what was the change in internal energy? Right. This is something which, as I said, ये सब ideal gas के लिए. ठीक है. So ideal gas के लिए we go ahead and write NCV delta T. ठीक है. Now अब notice करना, if the process is done in a reversible manner, then we can replace P external by P gas because system and surrounding are in equilibrium. We are not able to replace P external by P gas in case of irreversible processes. Irreversible processes में कैसा रहता है? External pressure is constant. It is not equal to the internal pressure during the process. Correct? यहाँ पर throughout the process, system and surrounding are in equilibrium when we talk about reversible process. So P external and P gas are same. So we will replace that over here, and instead of P external, I'll write just PdV. Now I'll use the ideal gas equation. Okay, I can write pressure as nRT by V, and I will cancel out this N on both the sides, and I will take the V terms on one side and T terms on the other side and do an integration. Volume ka limits V1 to V2 and temperature ka limits from T1 to T2. 1 upon V ka integral is ln V, 1 upon T ka integral is ln T, and I put those limits over there, right? So I'll get ln V2 by V1 is equal to CV by R into ln T2 by T1, right? Now I do some manipulations. What are those manipulations? यहाँ पे notice करना, gamma मैंने अभी आपको बताया था is the ratio of Cp by Cv, and you know I can write Cp as Cv plus R. So I write it over here. Then I simplify gamma as 1 plus R by Cv, and as a consequence I can write R by Cv as gamma minus 1. So I replace that R by Cv as gamma minus 1, and then take it in the power, like
ऐसा होता है ना, a ln x can be written as ln x की पावर a. So that's what I just did over here. And then even I took this minus sign inside. ये माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया, तो ये v2 by v1 का v1 by v2 हो गया, राइट. रेज टू द पावर ऑफ -1 होके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. एंड देन ln को मैंने हटा दिया, तो उसके बाद में what do I get? I get t1 v1 की पावर गामा -1 is equal to t2 v2 की पावर गामा -1, which makes me conclude that during the process t v की पावर गामा -1 is going to be constant. And this is something which I can write not just in terms of t and v, I can also write in terms of p and v, right? For example, मैं यहाँ पर let's say ऐसे t की जगह लिख देता n pv by nr, ऐसा लिख सकता हूँ ना, t की जगह pv by nr into v की पावर गामा -1 is constant. एंड ये nr तो खैर इसमें मर्ज हो जाएगा कांस्टेंट में जाके, तो मेरा क्या बन गया, ये pv की पावर गामा इज कांस्टेंट. ठीक है. I could have also manipulated it in terms of p and t. ठीक है, मेरे को tv या pv का रिलेशनशिप नहीं है, p और t का रिलेशनशिप चाहिए. तो बताना जरा क्या बनेगा, आप लोग मैनिपुलेट करके बताओ मुझे, व्हाट विल बी द powers and all, and what will be the relationship between p and t. आया किसी का? नहीं नहीं कुशल, हाँ पार्थ तुम्हारा ठीक है. आप ऐसे सोचो ना, यहाँ से स्टार्ट कर लो, pv की पावर गामा आपने कांस्टेंट निकाल लिया, राइट. कैन यू राइट v एज nrt by p, ऐसा लिख सकते हो ना. तो ये nr तो वापस कांस्टेंट में चला जाएगा, मतलब आई नीड नॉट वरी अबाउट इट. तो ये p की पावर 1 माइनस गामा इंटू t की पावर गामा इस कांस्टेंट आ गया ना, राइट. p की पावर 1 माइनस गामा, t रेज टू द पावर ऑफ गामा इज कांस्टेंट, right? Or you need to simplify it, then you can even do this, p multiplied by t raised to the power of gamma upon 1 minus gamma is constant. ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. जनरली यही यूज कर लिया जाता है, बट आई होप आपको ये वेरिएशन समझ में आ रहा है. ये वेरिएशन मैंने स्टार्टिंग में ऊपर लिख दिए थे, ठीक है. रिटन दीज डाउन. जनरली मुझे यही याद रहता है, पी वी की पावर गामा. दिस इज द वन विच आई रिमेंबर बिकॉज दिस इज द इजिएस्ट टू रिमेंबर, and the others I don't remember as such, but I can very well quickly derive them. I just need to put the ideal gas equation and they are ready. मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे. So I need not waste my brain cells in remembering this. ठीक है. All right. So this was something which was only valid for adiabatic reversible process. Why is this so? Why is it only valid for adiabatic reversible?
बिकॉज वाइल इन दैट प्रूफ, यहाँ पे मैंने आपको बताया that it is only for the reversible process that we are able to replace P external by P gas. For irreversible processes, we will not be able to do this replacement, and as a result, not go ahead with the following steps. So this process equation PV raised to the power of gamma is only true for reversible adiabatic processes, not valid for irreversible adiabatic processes. From this, what you can conclude, right, is the statement, ha, yes, we are going to do that because we are going to work with closed systems only. Right, so based on this result, ठीक है, notice करना, there is one conclusion that we are going to make, and that will be that we will be able to, go from some initial state to some final state. Right, say P initial, V initial, T initial से P final, V final, T final जा रहा हूं मैं. अब अगर मैं ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल मैनर में चला गया, तो फिर मैं एडियाबैटिक इरिवर्सिबल मैनर में नहीं जा पाऊंगा. Even if I try to keep the same final pressure, then I will land up at some V2 dash or T2 dash. They will be different from V2 and T2. Right, so this is something which I helped you visualize again via the same example that I had used for isothermal processes. तो यहाँ पर भी अगर मुझे एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है आइडियल गैस का इन अ रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल वे, तो आई यूज द सेम सेटअप. What is the difference between the previous setup and this setup? Correct. The walls here are insulating, right? There is no heat exchange that can happen. In this case, the walls are perfectly insulating, right? अब यहाँ पर आप notice करना, in case of reversible, how is it that we proceed? Initial pressure is PATM plus जो sand की वजह से pressure लग रहा है, and final pressure will be PATM because we will be removing the sand. But the way in which we will be removing the sand is a grain by grain manner, right? So P internal, as in P gas and P external, both will be almost the same and changing gradually from P initial to P final. Right? System surrounding will be in equilibrium and they will not be constant. Okay? They will be changing throughout the process. How will we do in case of irreversible adiabatic process? As I said, that हमें P initial से P final जाना है, right? P initial से P final जाना है, and what we will do is this time entire sand को एक साथ remove कर देंगे. Right? Entire sand को एक साथ remove कर देंगे, तो we'll go from P initial to P final in one go. ठीक है, तो मेरा फाइनल प्रेशर वही अचीव हो जाएगा, बट इन दोनों केस में मेरा फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर अलग अलग आने वाला है. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर मैं करता तो मैं आपको शो करके बता सकता था कि हाँ ये अलग अलग वैल्यूज आएंगे, बट थियोरेटिकली मैं आपको ये अलग अलग वैल्यूज क्यों प्रिडिक्ट करके दिखा सकता हूँ, बिकॉज दोनों का प्रोसेस इक्वेशन अलग रहेगा. यहाँ पर पीवी रेज टू द पावर ऑफ गामा कांस्टेंट रहेगा, एंड यहाँ पर पीवी रेज टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वैलिड नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर वॉल्यूम V2 है तो यहाँ पर वॉल्यूम V2 डैश आएगा, समथिंग एल्स वुड कम. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस इक्वेशन. हाँ, गामा इज Cp बाय Cv. मैंने बताया ना हर्ष आपको, जो हमने डेरिवेशन देखा अभी पीवी रेज टू द पावर ऑफ गामा वाला,
right? We just saw the derivation. हाँ, तो PV रेज टू द पावर ऑफ गामा was something जिसके डेरिवेशन में हमने P external को रिप्लेस करा with P gas, and that is something which you are only able to do in case of reversible processes. यहाँ पर हम लोग नहीं रिप्लेस कर पा रहे हैं, नहीं, यहाँ पर P external क्या है, यहाँ पर P external is atmospheric pressure which is constant, so we are not able to replace that in that derivation, and here that process equation of PV raised to the power of gamma is not valid. हाँ, तो this is something which I wanted you to realize. This was something that was not seen in case of isochoric, isobaric, isothermal. ठीक है, इसके पहले ये पॉइंट मैं कभी लेके ही नहीं आया था आपके सामने. इफ यू रिमेम्बर, जैसे लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आइसोथर्मल में भी बस इतना ही कर दिया था, दैट हम लोग P1 V1 T से P2 V2 T जा रहे हैं, रिवर्सिबली भी जा सकते हैं, इरिवर्सिबली भी जा सकते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी वर डूइंग. ठीक है, बट एडियाबैटिक में आई वुड वांट यू टू कीप दिस एट द बैक ऑफ योर हेड, दैट if we are going from some initial state to some final state, if we can go via adiabatic reversible, then we will not be able to go via adiabatic irreversible. Okay, and hence that summary statement that I talked about, that between any two states there exists only one unique adiabatic link. It will be either reversible or irreversible. समझ में आया? जहां तक का पार्ट क्लियर है अभी? आप देखो ना पृथ्वीराज, उसमें लाइक अभी जब हम ग्रेन बाय ग्रेन सैंड रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस? इट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी सैंड की वजह से प्रेशर आ रहा है. ठीक है, फिर आपने एक ग्रेन रिमूव कर दिया, तो प्रेशर ऑफ गैस चेंज हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू P atmosphere plus M dash G by A. Right? So this is your external pressure. So during the process, P internal and P external, they are in equilibrium with each other. हाँ, ठीक है. हाँ, तो अलग स्टेट पे जा रहा है ना हमें. दैट इज व्हाट इज आई एम सेइंग, दैट if you are starting from the same initial state, if you are starting from the same initial state, you reach, if you do adiabatic reversible process, you reach some final state. If you do adiabatic irreversible process, you will reach some final dash stage, like a different state you will reach. And that is what I've shown using these different variables v2 dash and t2 dash. ठीक है, अच्छा, अब इसकी फर्स्ट लॉ कैलकुलेशंस बताओ आप. फर्स्ट लॉ कैलकुलेशंस कैसी रहेंगी? क्यू तो जीरो रहेगा, be it reversible adiabatic or irreversible adiabatic. That means delta U will be equal to W. Correct? Now, अब नोटिस करना दोनों केस में रिजल्ट कैसा रहेगा. यहां पर I can write delta U as NCV T2 minus T1, right? And I can write CV as R upon gamma minus 1. Correct? And ये जो NR T2 minus T1 है,
उसको मैं P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकता हूँ. तो आई कैन राइट द वर्क का फॉर्मूला एज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1. मल्टीपल वेज में लिख सकता हूँ बेसिकली मैं. ठीक है, आपको चाहिए था. ठीक है, यू कुड हैव गॉट दिस आंसर ऑल्सो वाया इंटीग्रेशन. यू कुड, आई हैव नॉट डन दैट. ठीक है, आई विल लीव इट अप टू यू दैट ये माइनस पीडीवी करके. एंड अभी आपने यहाँ पे नोटिस करा ना, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो आप यहाँ पे पुट कर दो और इंटीग्रेट करो. ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, बट आई विल लीव दैट टू यू. आई डिराइव्ड इट इन अ डिफरेंट वे. मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया. मैंने एन सी वी, जो मेरा डेल्टा यू का फॉर्मूला है, एन सी वी T2 माइनस T1, वहां से स्टार्ट करा. CV को मैंने पुट किया R अपॉन गामा माइनस 1. कहाँ से लाया मैं ये CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1? ये भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव करके बताया था ना, दैट CP बाय CV इज गामा. और CP की जगह मैंने क्या लिख दिया था, CV प्लस R. एंड वहां से आई डिराइव्ड दैट आई कैन राइट CV एज R अपॉन गामा माइनस 1. ठीक है, यहाँ से आई वॉज एबल टू डू दैट आई कैन राइट CV एज R अपॉन गामा माइनस 1. सो अब यहाँ पर एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 हो गया. एंड एन आर T2 माइनस T1 को आई कैन राइट राइट PV इज इक्वल टू एनआरटी. तो है ही सही ना, PV इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन. सो मैं दोनों तरफ डेल्टा लगा दूंगा. राइट, डेल्टा लगाने पर क्या हो जाएगा, एन और आर तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा के बाहर आ जाएंगे. तो एन आर डेल्टा टी बिकम्स इक्वल टू डेल्टा पीवी. एंड हाउ कैन आई राइट डेल्टा पीवी? इट विल बी P2 V2 माइनस P1 V1. ठीक है, तो दिस इज one set of formula that you can use for adiabatic reversible processes. On the right hand side, if it was adiabatic irreversible processes, then delta U will be NCV T2 dash minus T1, right? Because we don't land up at the same T2, we will land up at some T2 dash. Okay, and the work will be equal to it, and it will be minus P external delta V, because P external was constant, we took it out of the integral, and that can be simplified as minus P external V2 dash minus V1. And this V2 dash will be different from the V2 that we got here. Okay, so these are the results of the adiabatic process. ठीक है, यहाँ पर देखो ना पार्थ, यही मैंने आपको बताया दैट CV को मैं R अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकता हूँ यहाँ से. करेक्ट, एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1. और फिर ये एन आर T2 माइनस T1 को क्या लिख दिया, P2 V2 माइनस P1 V1. समझ में आया पार्थ? नहीं नहीं, U इज अ स्टेट फंक्शन ऑलवेज देयर. यश, यहाँ पर डेल्टा यू डिफरेंट इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर नॉट बिटवीन द सेम स्टेट्स. यहाँ पर इनिशियल से फाइनल गया, यहाँ पर इनिशियल से फाइनल डैश गया है. तो अगर हम डिफरेंट स्टेट पे ही जा रहे हैं तो यस, मतलब डेल्टा यू का वैल्यू डिफरेंट आएगा. उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ऑल राइट. चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लो फटाफट फटाफट. ट्राई दिस क्वेश्चन.
An answer from Parth. Okay. ठीक है. हाँ, करेक्ट लग रहा है पार्थ आपका आंसर. निशांत, ऋग्वेद आपका भी राइट. सो कैसे करना है यहाँ पे? लाइक रिवर्सिबल एडियाबैटिक दिया हुआ है, आइडियल गैस दिया हुआ है, तो ठीक है, एक बार ढंग से लिख लेते हैं. दैट वी आर गोइंग फ्रॉम N1 T1 V1 टू सम N2 as in some same moles, T final V final, right? And यहाँ पे बोला जा रहा था the volume is becoming 27 times. ठीक है. So we applied the process equation for reversible adiabatic and it helped us get the final temperature which is 100 Kelvin. Right? Work done will be, you can write it to be either P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1, but इसमें फिर प्रेशर निकालने की मेहनत करनी पड़ेगी. तो आई एम लाइक लेट इट बी इक्वल टू डेल्टा यू विच इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी. एंड टेम्परेचर हमने निकाल लिया है, तो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ CV एंड गेट द आंसर. करेक्ट. ये समझ में आया कैसे करना था? Anyone who has a doubt, got stuck in this question? All right, चलो फिर एक और ट्राई करो. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. आंसर भी आपके सामने है. चलो, see if you can derive the answer. One thing to note from this above discussion that we had, that was adiabatic expansion में क्या होगा? Cooling of gas. And adiabatic compression में heating of gas. This is what we had seen in that video, वो जो अपन ने फायर सिरिंज वाला देखा था ना. तो this is the attribute that adiabatic compression हम कर रहे हैं. Q तो जीरो है, वर्क पॉजिटिव था, राइट? तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव आ जाएगा जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दैट कॉटन पीस गॉट इग्नाइटेड. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. एंड मैं अभी आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ बाय हाईलाइटिंग सम वर्ड्स इन द क्वेश्चंस. ठीक है, बाद में मैं आऊंगा नहीं हाईलाइट करने के लिए. यू विल हैव टू पिक दीज वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द काइंड ऑफ process and what all equations to be applied. Hmm. All right. हाँ राइट अमन, इरिवर्सिबल होगा. करेक्ट हर्ष, यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है.
right? Adiabatic irreversible will be the process. Now, अब यहाँ पर नोटिस करना, कौन था जिसने मुझसे पूछा था लाइक स्टेप 3 स्टेप 4 नहीं समझ में आया था. somebody had asked. तो ये वापस यहाँ पर वही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, स्टेप 1 सिस्टम, स्टेप 2 प्रोसेस, एंड स्टेप 3 विल बी योर एनालिसिस. ठीक है, स्टेप 3 विल बी योर एनालिसिस, wherein you will have to neatly segregate क्या दिया हुआ है एंड क्या पूछा जा रहा है. राइट, तो यू अंडरस्टूड दैट यहाँ पर इनिशियली 10 लीटर्स है. लाइक आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन का डेटा. वॉल्यूम इनिशियल 10 लीटर्स, टेम्परेचर इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इनिशियल 10 atm, ये दिया हुआ है. एंड देन फाइनल के लिए क्या बोला जा रहा है, ना तो फाइनल वॉल्यूम पता है ना फाइनल टेम्परेचर पता है. लाइक ये हमको निकालना है, इनफैक्ट दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. एंड इट इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट दिस कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm. राइट, सो फाइनल प्रेशर 1 atm और एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 atm है. तो ये इतना मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करके एनालिसिस करा, व्हाट वाज गिवन एंड व्हाट वाज आस्क्ड. नाउ इज वेयर द स्टेप 4 कम्स इन, दैट दो वेरिएबल्स हो गए और इन दो वेरिएबल्स को अब वर्कआउट करने के लिए आई नीड टू वर्क विथ इक्वेशंस. ठीक है, गलती से ये इक्वेशन मत लगा लेना, pv raised to the power of gamma, because it is only valid for adiabatic reversible. ठीक है, यहाँ पर दो इक्वेशन लग जाएंगी. एक तो ये प्रोसेस इक्वेशन लग जाएगी, p initial v initial by t initial is equal to p final, v final is equal to t final, एंड दूसरा फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लग जाएगा. इन दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे. बट जैसा मैंने आपको पहले बताया है दैट आप में से 90% स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करोगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ यूनिट्स. तो ठीक है, वो गड़बड़ अभी करोगे तो अच्छा है, सो दैट यू लर्न द हार्ड वे एंड देन रियलाइज दैट फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ठीक है, चलो, आई विल नॉट ओवरशूट योर टाइम, यू हैव अनदर क्लास आफ्टर दिस. हाँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट. बोलो गुरुदेव. यस सर, मुझे इस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डाउट था. हाँ हाँ बोलो. सर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर सकता है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर सकता है क्या? वेल, if I am in a stationary frame, so I will be talking about small changes at a time. But what about आई मीन इसे रिलेटिविटी से मतलब कंपेयर कर सकते हैं, मतलब जो कंबाइन कर सकते हैं. कभी सोचा नहीं मैंने, मैं भी सोच ही रहा हूँ. सोचता हूँ थोड़ा सा, then we'll think about it. I'm sure that it is not a trivial thing to wrap my head around it. ठीक है, थोड़ा सोच के अपन डिस्कस करते हैं इस पर. ओके सर, थैंक यू सर. और किसी को कोई और डाउट? हाँ बोलो पार्थ. Sir, with respect to what he said, sir, what if observer is far, far away? अरे generally when we talk about this frame of reference, it is not about the distance कि दूर है या वो पास तो है. ऐसे generally कह रहा था. हाँ नहीं, generally, so whenever this frame of reference is talked about, it is inertial versus non inertial. मतलब it is not दूर पास का frame of reference. ठीक है, अब वही चीज है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट थर्मोडायनेमिक्स में लाइक टाइम का एस्पेक्ट isn't something that we take into account. So that is where I don't think यहाँ पर relativity का concept include होना चाहिए, because of the fact that we don't do any calculations with respect to time in thermodynamics.
ठीक है, but still let me also think on this, read on this, और कुछ मिलेंगे arguments तो we'll discuss. चलो, all right then, take care guys.